Hello, dear students. As you know, I have sent you many videos on the chapter 7 production function and returns to a factor. I had also sent you the PDF of the same. Today we are going to revise the same chapter of microeconomics of class 11th. I am sure that you must have seen all the previous videos sent to you. Please complete your unfinished homework if not done yet. Please pause the video and read the concept of the production function. Now tell me, what is production function? Production function is the study of functional relationship between physical inputs and physical outputs of a commodity. In other words, it is the technological relationship between a firm's production, means output, and the material factors of the production, means input. Usually it is expressed in terms of the following equation. Assuming that labor and capital are the two inputs and Qx is the output of the commodity X. The equation is, or relationship is, Qx is equal to FLK, where Qx is physical output of the commodity X, L is physical input of labor or units of labor, K is physical input of capital or units of capital. Just revise. Production function is always defined with respect to a given technology or given technical know-how. Over time, technical know-how may improve accordingly. It may become possible to produce 110 units of commodity X instead of 100 units, which is with the same input. It is a solution of shift or change in production function. Now see what is fixed and variable factors. Factors of production are classified fixed factors and variable factors. Fixed factors are the factors which do not change, and variables which can be changed or changeable factors. Fixed factors are those the application of which does not change with the change in the volume of output. In fact, fixed factors like machines are installed before output usually start. Thus, a machine is there even when output is 0. Let us assume that machine can produce 1000 units of a commodity X. It means that for any change in the output ranging between 0 to 1000 units, input of machine fixed factor remains constant. Variable factors are those the application of which varies or changes with the change in the volume of output. Like labor. You need more labor to produce more units of commodity. Other things remaining constant. Thus, we use variable factors is 0 when output is 0. It increases as output increases. तो एक बार हम इसको समझ लेते हैं. फिक्स वो है जो हमारे साथ इररिलेवेंट है, मतलब नॉट रिलेटेड हैं. प्रोडक्शन हो या ना हो, फिक्स फैक्टर तो रहेगा ही. और वेरिएबल फैक्टर वो है कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को घटाते हैं तो वे घटते जाते हैं. फॉर एग्जांपल लेबर.
ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हमें ज़्यादा लेबर लगेगा और कम प्रोडक्शन करने के लिए कम लेबर्स लगेंगे, इस तरह से। अब आता है शॉर्ट रन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। इसको हम बहुत सरल भाषा में ये समझ लेते हैं कि जब हमारे पास केवल फैक्टर्स को ही चेंज करके प्रोडक्शन को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, तो वो पीरियड ऑफ टाइम जो है वो शॉर्ट रन कहलाता है। ये कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ मंथ्स, वीक्स या ईयर्स नहीं है। जो है उसको घटाने या बढ़ाने के लिए जब हम फिक्स फैक्टर पर चेंज नहीं कर पाते हैं, केवल वेरिएबल फैक्टर्स को वेरी या चेंज कर सकते हैं, उतना पीरियड शॉर्ट रन कहलाता है। और इसके अपोजिट जब हम सारे फैक्टर्स को बदल सकते हैं तो हमारे लॉन्ग टर्म कहलाते हैं। लॉन्ग टर्म में यहाँ डिफाइन किया जाता है कि सारे फैक्टर्स चेंजेबल होते हैं, कोई फिक्स फैक्टर्स नहीं होता है। तो ऐसा पीरियड जब हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए टूल्स, टेक्नोलॉजी, मशीन्स, लैंड, लेबर सब कुछ बदल सक रहे हैं, तो वो फैक्टर कहलाता है लॉन्ग रन। When one factor is fixed factor and the other factor is variable factor, production function may be specified as under Qx is equal to F L K bar. Here Qx output of commodity X, L is labor or variable factor, K bar is capital फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे बार लगाया हुआ है। इन दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड ओनली बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ एल, द वेरिएबल फैक्टर। द फॉलोइंग इक्वेशन इलस्ट्रेट्स दिस पॉइंट फर्दर। पहले हमें 40 यूनिट्स का प्रोडक्शन मिल रहा था जब हमने 5 लेबर्स लिए थे और 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल लिए थे। जब हमने इसको बढ़ाना चाहा और 40 से 45 यूनिट का हमने प्रोडक्शन लिया, तब हमने 5 से लेबर को बढ़ाकर कर दिया 6, जबकि जो हमारा कैपिटल है वो दोनों ही केसेस में 4 था, लेकिन हमारा आउटपुट बढ़ गया 40 से 45 क्योंकि हमने लेबर को इंक्रीज कर दिया था। दिस इज वाई शॉर्ट रन प्रोडक्शन इज कॉल्ड वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। इस फिगर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक तरफ हमने कैपिटल K को दिखाया जो ब्लू लाइन से कांस्टेंट दिख रही है, ऊपर नीचे नहीं हो रही है, सेम है। और एक बार हमने लेबर L1 को शो किया और दूसरी बार L2 को शो किया। तो लेबर जब हमने L1 रखा था तो हमारे पास प्रोडक्शन जो था वो OL1 था, और जब हम इसको आगे ले जाते हैं तो OL2 तक था। इसको K1 और K2 से भी यहाँ पे दिखाया गया है। ये डिस्क्रिप्शन को आप यहाँ पर बहुत आराम से पढ़ सकते हैं, OL2 और OL1। अब आता है लॉन्ग रन ऑफ प्रोडक्शन। लॉन्ग रन ऑफ प्रोडक्शन में सारे फिक्स फैक्टर चेंजेबल होते हैं और डिफरेंस फिक्स फैक्टर का और वेरिएबल फैक्टर्स का कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि हम लॉन्ग रन में टूल्स, टेक्निक्स, मशीन सबको बदल सकते हैं और सारे फैक्टर्स चेंजेबल हो जाते हैं। अब उस केस में plant size can be changed or more and more plants can be installed. Thus, what is fixed factor during the short period become the variable factor over the long period. When both the factors are variable, the long run production function is expressed under Qx is equal to function of Lk. Note that K is not indicated by K bar like L. It is a variable factor. सारे फैक्टर्स वेरिएबल हो गए हैं। हमने 40 यूनिट्स के लिए 5 लेबर्स और 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल ली थी। 40 को हमने इंक्रीज़ करा 80 से, तो हमने लेबर को भी चेंज कर दिया 5 से 10 में
और कैपिटल को भी चेंज कर दिया 4 से 8 में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 और 10 में जो रेशो है वही 4 और 8 में है, वही रेशो 40 और 80 में है। इसे समझ लेते हैं। बोथ L एंड K आर वेरिएबल फैक्टर्स। आउटपुट इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ बोथ फैक्टर्स। दोनों को चेंज किया, इससे पहले हमने केवल एक ही को चेंज किया था। In the long run production functions, factor ratio remains constant. It is 5:4 when output 40 units and 10:8, the same as 5:4 when output is 80 unit. This is why long run production is called constant proportion type. इसके पहले हमने बोला था वेरिएबल प्रपोर्शन टाइप, ये कहलाता है कांस्टेंट प्रपोर्शन टाइप। यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, उस फिगर से भी हम इस चीज को समझ सकते हैं। यहाँ पर सारे पॉइंट K1 हो या K2 हो, ये सभी पॉइंट OM लाइन पर दिखाई दे रहे हैं। तो फिगर 2 में आप देखेंगे K1 L1 अपॉन OL1, इसके बीच में जो रेशो आ रहा है उतना ही रेशो आ रहा है K2 और K2L2 और OL2 के बीच में। जैसे हमने देखा था 4 और 8, 5 और 10, 40 और 80, इन सब के बीच का जो प्रपोर्शन है या रेशो है वो इक्वल है। डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, इनके डिफरेंस दिए हुए हैं। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज वेरिएबल प्रपोर्शन, अभी हम पढ़कर आए थे, while the long run production function is constant type of production function, ये भी अभी हमने पढ़ा है recently. Scale of output is constant in case of short run production function, while it changes in case of long run production. ये हमने एग्जाम्पल के जरिए पढ़ा था। थर्ड डिफरेंस है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन exhibits while the long run production exhibits return to scale. रिटर्न्स टू स्केल और रिटर्न्स टू फैक्टर्स को थोड़ा सा आप समझ लें। जब हमारे पास प्रोपोर्शन में चेंजेस आ रहे थे, वेरिएबल प्रोपोर्शंस थे, तो वो हमने कहा था रिटर्न्स टू फैक्टर, और जब इनको हमने सारे फैक्टर्स को चेंज करते हैं सेम प्रोपोर्शन में, तो ये कहलाते हैं रिटर्न्स टू स्केल। ये समझने के लिए इसको आगे और स्पष्ट करेंगे, इसमें एक दो बातें और हैं बताने के लिए जो आगे आने पर आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है शॉर्ट रन प्रोडक्शन का और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का। ये बहुत ही सिंपल है, जिनको हम लोग डिस्कस करके आए हैं। एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसकी रीडिंग करिए और बताइए कि आपको सारे पॉइंट समझ में आए हैं या नहीं समझ में आए हैं। ये सिंपल है, जितने हमने क्लियर किए हैं वही फॉर्म में लिखा हुआ है। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, रीड करेंगे और मुझे बताएंगे। The syllabus prescribes the study of returns to a factor, not returns to scale. According to rest of the chapter, focus on the detailed examination of returns to factor. Returns to scale हमारे टॉपिक में नहीं है, इसीलिए उसको हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं। अब हम देखते हैं टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द वेरिएबल फ्रंट। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट। इनको एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 10 यूनिट्स, 12 यूनिट्स, 15 यूनिट, फिर 12 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, 6 यूनिट्स रहा, तो इस सब का हमने जब टोटल कर दिया
तो ये कहलाएगा टोटल प्रोडक्ट। ये डेफिनेशन यहाँ पे देखिए, टीपी यानी टोटल प्रोडक्ट इज द सम ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ ईच यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ईच यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द टोटल रिटर्न ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। अब आते हैं हम एमपी पर। मार्जिनल प्रोडक्ट। एमपी refers to change in TP when one more unit of variable factor is used, fixed factor remaining constant. Example, if output increases from 40 to 45 units when the input of the labor is increased from 5 to 6 unit, input of capital remaining constant, then 45 minus 40 is equal to 5. 45 क्या था? टोटल when 6 units of labor used. 40 क्या था? टोटल प्रोडक्ट when 5 units of labor are used. अब इन दोनों का डिफरेंस आया 5. इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट when 1 more unit of labor is used. तो ये फॉर्मूला बना दिया इसका, MPN इज इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1। ये यहाँ पर उसकी डेफिनेशन दी गई है। एक बार वीडियो को पॉज करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। MP refers to change in TP when one unit or one more unit of the variable factor is used, fixed factor remaining constant. TP is the sum total of MP corresponding to each unit of the variable. ये भी एक बात आपको ध्यान रखनी है जो आगे के एग्जाम्पल में आपको क्लियर होगा। एवरेज क्या होता है? एवरेज हमेशा होता है सम ऑफ टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, वही है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा से प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में इस बात को देखेंगे। AP इज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। It is estimated as under AP is equal to TP upon L. TP आप जानते हैं, L भी आप जानते हैं। इसको हम अपने एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इफ़ TP is equal to 40 when 5 units 5 labors are used, then AP is equal to 40 upon 5 is equal to 8 units of output. तो ये AP क्या होता है? AP refers a physical output per unit of the variable factor used in the process of production. ये एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखेंगे, एक टेबल यहाँ पे दिया हुआ है। लेबर की यूनिट्स दी गई है 1 2 3 4 5 6 7। एक बार आप भी देख लीजिए। टोटल प्रोडक्शन आपको दिया हुआ है 50 90 150 150 और 147। एवरेज आ जाएगा जब आपने एक यूनिट इस्तेमाल है तो आप एक से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 3 यूनिट आपने प्रयोग किया है तो 3 यूनिट से डिवाइड करेंगे। ये क्या है? लेबर या वेरिएबल फैक्टर। जितनी यूनिट हमने इस्तेमाल की है उससे हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? आउटपुट पर यूनिट। तो ये आउटपुट पर यूनिट ही एवरेज प्रोडक्ट कहलाता है। अब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। 1 से पहले कुछ भी नहीं है तो हमने 0 माइनस किया, फिर 2 से पहले 1 है तो 2 में से 1 को माइनस किया, 3 से पहले 2 है तो 3 में से 2 माइनस किया, 4 से पहले 3 है तो 4 माइनस 3 किया। उसी तरह से 5 से पहले 4 है, 6 से पहले 5 है, 7 से पहले 6 है, तो इनको हमने माइनस किया। माइनस करने से जो हमें आंसर मिला वो हमारा MP या मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाता है। अब ये एक और फॉर्मूला आपने समझ लिए थे पीछे, उसे एक बार और ध्यान देना चाहेंगे कि TP टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? एवरेज इनटू L। एवरेज क्या आया? मान लीजिए 25। कितने यूनिट्स यूज़ की? 6। तो 25 इंटू 6 इज इक्वल टू आ गया 150। अब TP इज इक्वल टू होता है सिग्मा या सम ऑफ MP। सम ऑफ MP यहाँ पे आप देख लीजिए 50 40 30 10 0।
इन सबको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया तो टोटल आ गया हमारा 150। ये ऊपर भी वही था 150 और नीचे भी आ गया 150। अगर हम टोटल को 6 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। पहले भी ये 25 आया हुआ था। नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करेंगे तो यहाँ पर 5th और 6th यूनिट के बीच डिफरेंस 0 आ रहा है। आप टेबल में भी देख सकते हैं इन चीज़ों को, इसे भी आप टेबल में समझ सकते हैं। लाइक वाइज 7 यूनिट्स ऑफ लेबर आर एम्प्लॉयड, तो ये आपको सॉल्व करके समझना है। जैसा ऊपर बताया था वैसा ही ये भी है। एक बार आप इसे करेंगे तो ऊपर वाली चीज़ समझ में आ जाएगी, और ऊपर वाली चीज़ समझ में आएगी तो नीचे वाली चीज़ समझ में आ जाएगी। वो कहते हैं ना, समझ आएगा तो मज़ा आएगा, मज़ा आएगा तो समझ आएगा। ध्यान से थोड़ा आप ट्राई करेंगे तो अच्छा लगेगा। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और इसी एग्जाम्पल के ज़रिए आपको ये पॉइंट्स को और क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें यूनिट्स ऑफ लेबर दिया गया है और टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो यूनिट्स ऑफ लेबर हमने यहाँ पे लिख लिया है, ये टोटल प्रोडक्ट भी हमने लिख दिया। एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ यूनिट। तो 20 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, 20 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा। 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 56 को तो 14 आएगा। 60 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 12 आएगा। ये हमारा इस तरह से एवरेज निकलते जा रहा है। अब हम मार्जिनल प्रोडक्ट निकालते हैं। आपको मालूम है मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। तो 20 से ऊपर नहीं है, 20 से ऊपर कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसमें से हमने 0 माइनस किया तो हमारे पास 20 आ गया। अब हमने क्या किया, टोटल प्रोडक्ट आपका कितना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 36 में से 20 को माइनस किया तो आ गया 16। फिर 48 में से 36 को माइनस किया तो आ गया 12। 56 में से 48 को माइनस किया तो आ गया 8, और 60 में से 56 को माइनस किया तो आ गया 4। इसी तरह से आपने 60 में से 60 को माइनस किया तो आ गया 0। ये हो गया अब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। अब एग्जाम्पल 2 है, ये कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये आपको ट्राई करना है कि मार्जिनल प्रोडक्ट से टोटल प्रोडक्ट कैसे निकाला जा सकता है। और जब आपके पास टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा तो आप हर एक यूनिट से भाग देते जाएंगे 1 2 3 4 5 से, तो आपके पास एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा। अब एक बार आप इस प्रक्रिया को, जो ऊपर हमने मार्जिनल प्रोडक्ट को निकालने के लिए की थी, उसको आप रिवर्स या उल्टा करेंगे तो आपका टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। पहली यूनिट तो सेम रहती है, ये 18, ये भी 18, ये भी 18, ये भी 18। अब दूसरे में आपको क्या करना है, सेकेंड यूनिट कैसे मिलेगी आपको टोटल प्रोडक्ट की, 18 प्लस 16, 8 और 6 14 कि 4 हासिल का है 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 34 आ जाएगा। आपने क्या कर दिया है, इन दोनों को ऐड कर दिया है तो ये आ गया आपके पास 34। फिर आप क्या करेंगे, 34 में 14 ऐड करेंगे, 34 में 14 ऐड करेंगे या ऊपर के सारे नंबर ऐड कर लेंगे जैसा आप ठीक समझे। तो 34 में आपने 14 ऐड करा तो 48 आ गया। 48 में या तो आप 12 ऐड करिए या ये सारे नंबर ऐड करिए। इस तरह से आपको ये टोटल प्रोडक्ट मिल जाएगा। और टोटल प्रोडक्ट को आप यूनिट से 1 2 3 से डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 से, तो आपको एवरेज प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये हुआ हमारे आज के चैप्टर का पार्ट 1। इसके आगे का जो पोर्शन है इसमें हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा, हम पढ़ने वाले हैं रिटर्न्स टू अ फैक्टर, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और द लॉ ऑफ फिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। इसे हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक आप इसे रिवाइज करिए, एक बार बुक से लेसन पढ़िए, और ये आगे का टॉपिक भी आप अपनी बुक से ज़रूर पढ़ लें।
ताकि आगे यहाँ जो आपको बताया जाएगा उसे आप आसानी से समझ पाएंगे। थैंक यू।